episode 2 of my wedding series. Today is all about mehendi and cocktail. Well, you all know these functions are all about dancing and having fun all night, and honestly, it's one of my favorite functions to attend. Talking about today's look, it's bold, it's sexy, and I can promise everyone is going to turn their heads just to look at you. Even if you're the bride or the bridesmaid or the bridegroom's sister, it's perfect for everybody. So if you want to learn how to achieve this beautiful look, then keep on watching. I'll start by applying moisturizer, and today I'll be using the Bobbi Brown Vitamin Enriched Moisturizer. This moisturizer is very thick, एकदम butter जैसी consistency है, but once you start massaging it on your skin, it literally melts and winters के लिए perfect है. So मेरे पास eye cream नहीं था, तो I decided to use the same moisturizer under my eyes as well because winters है, skin बहुत dry हो रही है, and I wanted my under eyes to be hydrated and moisturized. To have that beautiful glowy looking skin, next I'm using the MAC Strobing Cream in the shade Pink Light. Vic Strobing Cream is like a liquid highlighter but a little subtle. आपका base बहुत ज़्यादा glowy लगता है and basically बहुत प्यारा सा लगता है. तो I will apply this on the highest points of my face. जैसे आप देख सकते हो, मैंने अपनी cheekbone पे लगाया, अपनी nose पे लगाया and also a little bit on my upper lips as well. अब प्राइमर के लिए आई एम यूजिंग द हुडा ब्यूटी वाटर जेली प्राइमर. ये एक बहुत अच्छा प्राइमर है, थोड़ा सा स्टिकी कंसिस्टेंसी है, तो इससे पता चलता है दैट आपका फाउंडेशन काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा एंड काफ़ी लाइट वेट एंड कंफर्टेबल भी है स्किन के ऊपर. For foundation, I'll be using the Clinique foundation. अब इसका shade तो I'll give it in the description box below. Shade name याद नहीं है मुझे, but I'm blending this using the Morphe Red sponge. इतना सुंदर प्यारा sponge है ना, that I would highly recommend it. And इसको मैंने section by section अपने पूरे face, neck and ears पे लगा दिया. For concealer, I'll be using the Wet n Wild Photo Focus Concealer. बहुत हाइड्रेटिंग कंसीलर है, आप लोगों को तो पता है मैं कितने सालों से ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ. तो ये शेड बहुत क्लोज है मेरी स्किन टोन से, सो आई विल अप्लाई दिस अंडर माई आईज सारे डार्क स्पॉट्स वगैरह हटाने के लिए. एंड बिकॉज ये बहुत हाई कवरेज कंसीलर नहीं है, इसके ऊपर मैं हुडा ब्यूटी का ओवर अचीवर कंसीलर अप्लाई कर दूंगी अंडर माई आईज एंड ऑल्सो जहाँ पे मेरे निशान है, एक्ने मार्क्स हैं या डार्क स्पॉट्स है, इसको लगा के मैं ब्लेंड कर दूंगी. अब कॉन्टोर करने के लिए आई एम यूजिंग द शुगर कॉस्मेटिक्स कॉन्टोर स्टिक एंड इसको मैं अप्लाई कर दूंगी अंडर माई चीक बोन, थोड़ा सा अपना चीक बोन और फेस को डिफाइन करने के लिए एंड ऑल्सो ऑन माई जॉ लाइन. एंड जैसे कि आप देख रहे हो ना, इसको ब्लेंड करने के लिए मैं अपवर्ड मोशन यूज़ कर रही हूँ. जब भी आप अपना कॉन्टोर ब्लेंड कर रहे हो ना, प्लीज़ इसको ऊपर की साइड ब्लेंड करो, आपका फेस थोड़ा सा अपलिफ्टेड लगेगा. अगर आप नीचे के साइड करोगे फिर आपका फेस बहुत ड्रूपी लगेगा एंड दैट इज नॉट नाइस. टू सेट माई कंसीलर आई विल बी यूजिंग द हुडा ब्यूटी लूज पाउडर इन द शेड शुगर कुकी. ये एक ट्रांसलूसेंट पाउडर है एंड इसको मैं अंडर आईज पे बेक कर लूँगी यूजिंग द ब्यूटी स्पंज. आई पर्सनली लाइक टू बेक यूजिंग अ स्पंज. इससे आईज बहुत ड्राई नहीं लगती इन कंपेरिजन इफ़ यू यूज़ अ ब्रश टू बेक. एंड इस पाउडर को आई लेट इट सिट अंडर माई आईज for about 2 minutes and एक ऐसा fluffy brush लेके I will dust it off. अब I don't want my makeup to look very powdery, so मैंने एक फटाफट से makeup spray लिया just to set the powder. If you want, you can also bake around your smile lines just to ensure that you don't have those weird creases while you're smiling or dancing or talking. Next, I will use the Benefit Brow Pencil to fill in my brows. Next for blush, I'm using my favorite, the Balm Big Date blush. Love the shade, love how it sits on the skin and it looks beautiful on my skin tone. I'm NC42 in MAC if you're wondering. And जैसे कि आप देख सकते हैं, I'm not applying it on the apple of my cheek. अब मैंने अपने cheek bone पे लगाया है. This gives an illusion that my face is long and structured. अब ब्रॉन्ज करने के लिए I'll be using the Balm Bahama Mama bronzer. Again a beautiful bronzer for people around my skin tone. Highly recommended and बिल्कुल पैच नहीं लगता है स्किन पर. Bronzer helps in adding warmth back to your skin because foundation concealer वगैरह लगाने के बाद ना फेस थोड़ा सा फ्लैट लगता है. So just to add some color, bronzer is very important. इसको बहुत हल्के हाथ से I'll apply it on my forehead, under my cheekbone and also on my jawline.
For my eyes, I'll be using the OG Jaclyn Hill Morphe palette, and I'll start by using a very light brown shade all over my crease with a big fluffy brush and अच्छे से blend कर दिया उसको. अब to deepen up my crease, I'll take another deeper brown shade, and जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपने पहले वाले शेड से थोड़ा सा नीचे लगा रही हूँ, एंड आई मेक श्योर दैट सब कुछ ब्लेंडेड है, पैची नहीं लग रहा है या कोई लाइन नहीं लग रही. एंड ऐसे ही धीरे धीरे मैं डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउन शेड्स लूंगी, एंड हर टाइम मैं एक डार्क शेड लूंगी प्रीवियस वाले कलर से, एंड आई विल डीपन अप द क्रीज. एंड इस डार्क ब्राउन शेड के साथ आई एम ऑल्सो टेकिंग इट अ लिटिल आउट, कि थोड़ा सा लॉन्ग सी लगे मेरी आईज प्यारी प्यारी सी, तो इसे मैं थोड़ा सा आई शेडो बाहर के टूवर्ड्स एक्सटेंड कर दिया है. टू मैच माई आउटफिट आई वॉन्टेड टू यूज अ ब्यूटिफुल ग्रीन मेटालिक कलर, एंड मुझे एक एग्जैक्ट शेड मिला इन के ब्यूटी. दिस इज देयर क्रेयॉन आई शेडो स्टिक. तो मैंने इसको अपने आईलिड के स्पेस पे लगा दिया जहाँ पे कोई आई शेडो नहीं है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव दैट कट क्रीज लुक. मैंने एक बहुत पतला प्रिसाइज ब्रश लिया, प्रोडक्ट को इस ब्रश पे उठाया, एंड आई स्टार्टेड कार्विंग आउट द शेप ऑफ द कट क्रीज दैट आई वॉन्टेड यूजिंग द सेम ब्रश. लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे लुक्स लाइक मैंने बहुत आसानी से कर लिया है, बट नो, आई took like आराम से 10-15 minutes to do my eyes. So I just took my time, you do too, and आराम से अपना ये लुक करना. अब एक हल्का सा ग्राफिक आईलाइनर लुक देने का मन था, थोड़ा सा ड्रामेटिक करने के लिए, तो I used the NYX Money Heist collection eyeliner, a beautiful eyeliner, बहुत pigmented and dark है, and it's matte, it's beautiful. ऐसे ही मैंने हल्का सा आउटर कॉर्नर में अपने आईज को डिफाइन करने के लिए I did a very simple graphic look, एंड ये करने के बाद आई गॉट द आइडिया कि आईज का शेप कैसे होगा, आई शेडो कैसा लगेगा. सो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आई जस्ट सिंपली फिल्ड द एम्प्टी स्पेस. लास्ट में थोड़ा सा एक डार्क ब्राउन शेड लिया जस्ट टू डीपन अप माई क्रीज अ लिटिल मोर, क्योंकि मैंने जब ग्रीन वाला शेड यूज़ किया तो थोड़ा सा ब्राउन वाला शेड हट गया था, तो उसको थोड़ा सा मैंने डीप कर दिया. To intensify the metallic green look, I used this beautiful olive green eyeshadow, and इसको मैंने पूरे eyelids पे लगा दिया, and हल्का सा glitter करने के लिए the Miss Claire liquid gold eyeliner, and हल्का हल्का अपने पूरे eyes पे, बहुत ही हल्का अपने पूरे eyelids पे लगा दिया. I took a beautiful golden color and अपने inner corner पे लगाया just to brighten up the entire look, वरना बहुत ज़्यादा dark हो जाता तो फिर eyes बहुत छोटी लगती हैं. So अपनी eyes को थोड़ा सा बड़ा and खुला दिखाने के लिए I added a little bit of golden color just in the inner corner, and फिर एक पतला सा एक eyeliner लगाया using the same eyeliner. उसी eyeliner को लेकर I extended it in the inner corner as well. This gives an illusion of big lotus eyes. फिर इसके बाद I added false lashes. The exact product will be listed in the description box below. And the next highlighter के लिए I'm using this golden highlighter from K Beauty. Again shade मैं बिल्कुल description box में add कर दूंगी. पूरा मेकअप सेट करने के लिए फिर से मैंने अपना मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया. You can use whatever you have. हुडा का अच्छा है, मैक का अच्छा है, पैक का अच्छा है, तो कोई सा भी आपके पास आप उसको यूज़ कर लो. लिप लाइनर के लिए मैंने जेराड कॉस्मेटिक्स का ऑल टाइम फेवरेट शुगर एंड स्पाइस वाला लिप लाइनर यूज़ किया. इट्स अ ब्यूटीफुल न्यूड कलर, एंड हल्का सा आउटलाइन किया है बिकॉज यू गाइज नो आई एम इनटू overlining my lips nowadays. तो हल्का सा ओवरलाइन करने के बाद आई एम यूजिंग द शुगर कॉस्मेटिक्स ब्राउनिंग ग्लोरी लिपस्टिक विच इज़ अ ब्यूटीफुल मैट ब्राउन कलर, एंड इसको मैंने अपने पूरे लिप्स पर लगा लिया. Also, I added a lip gloss which is this beautiful color from Bobbi Brown, a very comfortable formula. बहुत प्यारा ग्लॉस है, इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है. सो हाईली रिकमेंड दिस वन. एंड लिप ग्लॉस लगाने के बाद ऑफ कोर्स टू फिनिश ऑफ द लुक आई हैड टू अप्लाई बिंदी. मेरा मेकअप लुक कंप्लीट ही नहीं होता विदाउट अ बिंदी, एंड दैट इज द कंप्लीट लुक. एवरीबडी एब्सोल्युटली लव द वे इट टर्न्ड आउट. इट्स डेफिनेटली आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, बट आई थिंक it's very appropriate for this particular occasion, mehendi and cocktail. I hope you guys enjoyed watching today's video, and if you did, make sure to hit the subscribe button, like and share the video, and I'll see you guys in the next video very soon. Bye. Mwah.